Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, you will learn the full revision of cell division, cell cycle. This is all about matter of class 9th. In previous few video lecture, you have learned the different types of cell division as well as the concepts of cell cycle. That is by means of mitosis, by means of meiosis. So many way you have learned the different types of cell division. As you all know, the basic key types of cell division is the mitosis and meiosis. So this revision is actually all about the basic criteria, basic question that may be the MCQs type, very short answer type question related to mitosis and meiosis. So without delay timing, let back over the question and one by one revise the important MCQs that may probably ask in the upcoming examination as well as the competitive examination. But the very short answer type and short answer type question will assist in the academic examination. Very short answer type and short answer type will actually not actually related to the competitive examination, but the MCQs type question is very important for you. So without delay timing, let back over the question and revise thoroughly. I hope you have a pen paper in order to note down the important concept, and this should be in your copy also. So let back over the question, that is begin from the MCQs, letter very short answer type and short answer type. The first question of multiple choice question, the first question is meiosis in diploid organisms result in production of gametes, reduction in numbers of chromosomes, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन ऑल द अबव. देखो पूछ रहा है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में अगर मियोसिस हो रहा है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में अगर मियोसिस हो रहा है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते क्या है उसको मैं बता दे रहा हूँ. डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स that have a double number of or even number of chromosomes with respect of their gametes. It means you all are the diploid organisms. So diploid organisms always possess the double number of chromosome, that is represented by 2n. So if the condition is 2n, then what happen? Then the organisms are known as diploid organisms. So diploid organisms later by means of gamete formation able to form the sperm or ova in the human being and the pollen grains and egg cells in the plants. So they will actually not only able to produce the gametes, they also reduce the number of chromosomes. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें 2n है तो इसमें कितना हो गया n. सपोज दैट ह्यूमन बीइंग का 46 है तो इसमें कितना हो जाएगा गैमेट्स में 23. ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. इसमें भी कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्रोमोसोम नंबर भी रिड्यूस होता है, साथ साथ और क्या रिड्यूस होता है, वेरिएशन भी होता है. यानी कि वन कम्स फ्रॉम द मेल देन द फीमेल में भी यही प्रोसेस होगा, फीमेल में भी यही प्रोसेस होगा. उसमें भी डिप्लॉयड जो है ढेर सारे गैमेट्स बनाएंगे और एक गैमेट्स जो है फीमेल से आएगा और एक गैमेट्स मेल से आएगा, फिर से ये रिस्टोर करके बॉडी बनाएंगे. तो ये वेरिएशन होगा, ये वैरायटी आएगा. तो वेरिएशन के रिस्पॉन्सिबल जो सेल डिवीजन है वो मियोसिस है. तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल द अबव. इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन भी होगा, रिडक्शन इन क्रोमोसोम्स होगा और प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होगा. यानी कि ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही. ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. At which stage of meiosis does the genetic constituents of gametes is finally decided? कह रहा है कि मियोसिस के किस स्टेज में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि वो हैप्लॉयड होगा डिप्लॉयड होगा, किस स्टेज में डिसाइड होता है. तो वो हमेशा डिसाइड होता है एना फेज में. एना फेज फर्स्ट में ही डिसाइड हो जाता है. यानी कि मियोसिस फर्स्ट में जो प्रो फेज फर्स्ट होता है, मेटा फेज फर्स्ट होता है. ठीक है, इसके अलावा जो है एना फेज फर्स्ट होता है. इसी में वो डिसाइड हो जाता है कि हैप्लॉयड होगा डिप्लॉयड होगा. एना फेज में ही ऐसे दो न्यूक्लियस बन जाते हैं एक ही में. ठीक है, जो मूव कर रहे होते हैं. अभी दो न्यूक्लियस बने नहीं होते हैं बल्कि दोनों मूव करते हुए जाते हैं. ठीक है, और ये पता कर चल जाता है कि अब ये क्रोमोसोम्स सेपरेट आउट होकर के अलग अलग पोल्स पे चले जाएंगे. तो एना फेज फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, एग्जाम में आता है. ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट. मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग. कह रहा है मियोसिस जो है ऑर्गेनिजम्स में कब होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस तब होता है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है, वो सेक्सुअल वेजिटेटिव या नन ऑफ दीज. तो अभी देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि इंपॉर्टेंट है मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है ऑर्गेनिजम्स में तो मियोसिस
नहीं होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। एसेक्सुअल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स तो एज यूजुअल रखने, डिप्लॉयड है तो उसकी आने वाली जनरेशन डिप्लॉयड होगी, हैप्लॉयड है तो उसकी आने वाली जनरेशन क्या होगी, हैप्लॉयड होगी, ठीक है। बट अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और उसको ऑर्गेनिजम्स आने वाली जनरेशन को डिप्लॉयड करना है, तो इसमें 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ेगी और उसमें मियोसिस ना हो, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स गैमिट्स में 2n हो जाए, तो आने वाली जनरेशन में गैमिट्स की मेन बॉडी में कितने क्रोमोजोम्स हो जाएंगे, 4n। इस वजह से जो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो मियोसिस के थ्रू गैमिट्स बनाते हैं, यानी हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स बनाते हैं, और जो स्टोर करके इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रखता है जो पेरेंट्स की तरह से होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एडवांटेज है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, यानी इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में आप लोग बैठा के चलिए, सारा क्वेश्चन कॉपी पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस होमोलॉगस क्रोमोजोम सेपरेट। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एनाफेज स्टेज में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं, नॉन होमोलॉगस सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स होते हैं, या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। देखो मोर रिलीवेंट्स तो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स तो हमारा अपना नाम है, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोजोम्स जिसमें इक्वल जेनेटिक मटेरियल वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है हमेशा इक्वल जेनेटिक मटेरियल वाला होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोजोम्स, ठीक। यहाँ पे देखिए ये होमोलॉगस क्रोमोजोम्स है और ये होमोलॉगस क्रोमोजोम्स है। ये मियोसिस, ये एनाफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट में ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो द क्रोमोजोम्स दैट हैव द इक्वल जेनेटिक मटेरियल और इक्वल जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स आर नोन एज होमोलॉगस क्रोमोजोम्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मियोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई, कह रहा माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई, माइटोसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिडक्शन डिवीजन। ये तो गलत है भाई, रिडक्शन डिवीजन माइटोसिस मियोसिस को बोलते हैं, इक्वल डिवीजन ये सही है, ठीक है, ये बी सही है, विदाउट फेल्योर ये सही हो जाएगा। रिडक्शन और इक्वल तो हो ही नहीं सकता, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कैरेक्टरिस्टिक्स है मियोसिस का, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल डिवीजन, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट में आप बी रखिएगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट। अ बाईवैलेंट, कह रहा है अ बाईवैलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ, कह रहा है बाईवैलेंट जो मियोसिस में होता है उसमें क्या होता है, तो ऑप्शन 1 क्या दे दिया है, 2 क्रोमेटिड्स एंड 1 सेंट्रोमियर्स। ऑप्शन बी क्या दे दिया, ए क्या दे दिया है, 2 क्रोमेटिड्स एंड 1 सेंट्रोमियर्स, 2 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर्स, 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर्स, 4 क्रोमेटिड्स एंड 4 सेंट्रोमियर्स। तो पहले आपको क्रोमेटिड्स समझा दे रहे हैं। देखो जो क्रोमोजोम्स बनता है ना, ऐसे क्रोमोजोम्स, ऐसे क्रोमोजोम बनता है, एक्चुअल में एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम है ये क्या है, पेयर ऑफ क्रोमोजोम। इसके एक हिस्से को क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ये हिस्सा जो है इसी को बोलते हैं क्रोमेटिड्स। तो इसमें कुल कितने क्रोमेटिड्स, 1 2 3 4, ये 4 क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है। तो इसमें 4, इसमें क्या हो जाता है, 4 क्रोमेटिड्स और 2 सेंट्रोमियर का ऑप्शन सही है। 2 सेंट्रोमियर देखो ऊपर वाले में भी है, बी ऑप्शन में भी है और सी वाले में भी है, लेकिन ऊपर वाले में 2 क्रोमेटिड्स दे दिया। 2 क्रोमेटिड्स ऐसे बनेंगे, ये 2 क्रोमेटिड्स, एक क्रोमेटिड्स ये, एक क्रोमेटिड बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है। यहाँ पे बीच में सेंट्रोमियर है और ये 4 क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट, कह रहा है सेल्स जो डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, वो किस स्टेज में रहते हैं। तो ऑप्शन क्या, जी फेज, तो जी फेज तो होता ही नहीं, G1 लिखा हुआ है, ठीक है। G2 फेज, यानी कि कह रहा है कि कौन सा स्टेज ऐसा है जो बिल्कुल सेल जो है पता ही नहीं चलता वो डिवाइड होंगे कि नहीं डिवाइड होंगे, यानी कि इनएक्टिव स्टेज में। तो आपको सबको पता है वो G0 फेज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होता है। यहाँ पे टाइम हमको नहीं ज़्यादा डिले करना है। नेक्स्ट क्या है 8, विच ऑफ द इवेंट्स लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस, कह रहा है माइटोसिस में कौन सा, नीचे का ऑप्शन जो दिया है उसमें से कौन सा माइटोसिस में नहीं होता है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए क्या दिया है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन, ये होता है भाई, यानी कि ए होता है, इसमें टिक कर दे रहा हूँ। बी क्या दिया है, मूवमेंट्स ऑफ सेंट्रोमियर्स टू अपोजिट पोल्स, ये भी होता है। सी क्या है, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स विथ 2 क्रोमेटिड ज्वाइन टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, ये भी सही है।
क्रॉसिंग ओवर नहीं होता बेटा, ये क्रॉसिंग ओवर किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मियोसिस का, कैरेक्टरिस्टिक्स है मियोसिस का, माइटोसिस में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट 9, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स अबाउट मियोसिस। अब मियोसिस के लिए कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऊपर क्या था, माइटोसिस के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट छाटना था तो क्रॉसिंग ओवर आ गया था, इसमें क्या पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये सही है, होता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, ये भी होता है। एट द एंड ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ, ये भी सही है। 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन का सिर्फ एक ही साइकिल अपीयर्स होता है। देखो एक सेल है जो डिप्लॉयड है, ठीक है, और ये क्या बना रहा है कि 2 डिप्लॉयड सेल्स बना रहा है, 2 डिप्लॉयड सेल्स बना रहा है। इसके बाद अगर ये दोबारा से एस फेज में इंटर किया, ठीक है, तो ये फिर से जो है 2 डिप्लॉयड सेल्स बनाने के बजाय 4 डिप्लॉयड सेल्स बना बैठेगा, 4 डिप्लॉयड सेल्स बना बैठेगा। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में कोई डिप्लॉयड सेल्स जो है विदाउट एस फेज में इंटर किए 2 हैप्लॉयड सेल्स पहले बनाता है। एस फेज अगर हो जाता, ये एस फेज अगर यहाँ पे हो जाता, ठीक है, तो ये दोनों डिप्लॉयड सेल्स हो जाते हैं, लेकिन एस फेज ना होने की वजह से दोनों हैप्लॉयड हो जाते हैं। फिर से ये इंटर करते हैं अलग अलग मियोसिस सेकेंड में, मियोसिस सेकेंड में जब इंटर करेंगे तो 2 हैप्लॉयड सेल्स से क्या हो जाएगा, 4 हैप्लॉयड सेल्स हो जाएंगे। क्लियर है ना, 1 2 3 4। चलो आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है 10 नंबर पे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। कह रहा है कि G1 फेज का करेक्ट स्टेटमेंट आपको छाटना है। सेल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव, G1 फेज में इनएक्टिव, मेटाबोलिकली नहीं होते, एक्टिव होते हैं। डीएनए इन द सेल्स डज नॉट रेप्लिकेट, ये सही स्टेटमेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है बाबू, यस फेज में, ठीक है। G1 G2 G0 फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन का सवाल ही नहीं। तो ऑप्शन जब मिल गया सही तो बाकी का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिलहाल पढ़ दे रहे हैं। इट इज़ नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल का सिंथेसिस होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। सेल स्टॉप ग्रोइंग, सेल जो है स्टॉप ग्रो कर जाता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट छाटना था। तो एस फेज में जो है सिंथेसिस होता है, यानी कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, अब आ जाते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्या पूछ रहा है, बिटवीन अ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट विच सेल हैज़ द शॉर्टर सेल डिवीजन। कह रहा है कि कौन से सेल में सेल डिवीजन शॉर्टर होगा। तो इसमें देखो पहली चीज़ ये कि यूकैरियोटिक सेल में, अब इसको मैं तुमको दे रहा हूँ जस्टिफाई करना है, इसको आप एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ प्रोकैरियोट में शॉर्टर होता है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है आप पेज में, समझा देना, ध्यान सुनो। यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा फेज चाहिए होता है प्रोफेज, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स होता है और क्रोमोसोम जो है बन जाते हैं। डायरेक्ट प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह कुछ होता नहीं, सीधे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए प्रोफेज जैसी कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या पढ़े होंगे प्रोफेज फर्स्ट की खास बात होती है, ठीक है, प्रोफेज की खास बात होती है, लेकिन प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जरूरत ही नहीं हटाने की, ऑलरेडी वो नहीं होता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा जो है टाइम नहीं लगता। और यूकैरियोट में शॉर्टर सेल डिवीजन होता है, एग्जाम में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फेज ऑफ सेल साइकिल इज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। कह रहा है कि दोनों सेल साइकिल, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, ठीक है, पूछ रहा है कि कौन से सेल में सबसे ज़्यादा, कौन सा फेज ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो फेज है इंटरफेज ऑफ मियोसिस, ठीक है, वो इंटरफेज। मियोसिस तो लिखेंगे नहीं, दोनों में, दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ कौन लगता है, इंटरफेज। इंटरफेज पढ़े होंगे, और ये कंज्यूम करता है अबाउट 95%, ठीक है। बिफोर माइटोसिस एंड बिफोर मियोसिस, बिफोर माइटोसिस बिफोर मियोसिस 95% जो केस है, 95% जो है टाइम है वो कब लगता है, वो लगता है इंटरफेज में। तो ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम अ स्टेन कॉमनली यूज टू कलर क्रोमोसोम्स। तो आपको क्या बताया गया था, फ्लुएल्जेन, ठीक है, फ्लुएल्जेन। एक और लिख लो कॉपी में, एसीटोकॉर्मीन, एसीटोकॉर्मीन, ठीक है। ये 2 केमिकल्स के नेम आप नोट कर लीजिए, दोनों केमिकल किसके लिए हैं, कलर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए, एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है,
विच टिश्यू ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट मियोसिस, कह रहा है कि कौन सा टिश्यू एनिमल्स और प्लांट का मियोसिस करता है। तो आपको पता है कि सिर्फ वही सेल्स जो है वही टिश्यू मियोसिस परफॉर्म करेगा जिसके पास डिप्लॉयड से हैप्लॉयड की बनाने की कैपेसिटी होती है। तो हमारे सारे सेल्स में कैपेसिटी होती नहीं है, सिर्फ एक सेल होता है, उसका नाम है मियोसाइट्स। नोट कर लीजिए, सिर्फ आपके एक सेल है मियोसाइट्स, उसी में एनिमल्स में भी मियोसाइट्स होते हैं और प्लांट्स में भी मियोसाइट्स होते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स द मियोसाइट सेल्स आर एक्चुअली द एग सेल्स, that is egg cells present in the present in the ovary and sperm cell present in the testis, sperm cell present in the testis, that is the sperm mother cells, and ovum, that is ova mother cells, that is known as the oogonium, that is known as the oogonium, and spermatogonium and oogonium are the sperm mother cell and egg mother cells or ovum mother cells. So these two are actually responsible to form the meiocyte, form the gametes, and through the process of meiosis, that is actually a nature, and that nature is known as मियोसिटिक नेचर्स। तो मियोसाइट्स स्पेशल नेम है किसी सेल का, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनियम और ऊगोनियम एक पार्टिकुलर जो है उसका सिनोनिम्स है, ठीक है। एक ग्रुप का नाम है मियोसाइट्स, जिसमें एक मियोसाइट्स में स्पर्मेटोगोनियम भी आ जाएगा, ऊगोनियम भी आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को लिस्ट कर लीजिए और आप हमसे यही क्वेश्चन जो है लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एन एंथर हैज़ 1200 पॉलन ग्रेन्स, कह रहा है कि एक एंथर है, एक बड़ा सा एंथर, इसमें 1200 पॉलन ग्रेन्स है। 1200 क्या है, 1200 पीजी हैं पॉलन ग्रेन्स। पूछ रहा हाउ मैनी पॉलन मदर सेल्स मस्ट हैव बीन देयर टू प्रोड्यूस देम, कह रहा है कि कितने उसमें पॉलन मदर सेल की जरूरत पड़ेगी। तो एक बात बता दे रहा हूँ, पॉलन मदर सेल डिप्लॉयड होता है और उससे मियोसिस के थ्रू क्या बनता है, उससे मियोसिस के थ्रू बनता है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स की वैल्यू दे दिया है कुल कितना, 1200, पॉलन ग्रेन्स की वैल्यू दे दिया है 1200। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, सीधे आप 1200 का 1/4 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 1200 की अगर 1200 का 1/4 कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक सेल से 4 सेल बनता है ना, तो 1200 बनाने के लिए एक सेल जो है, देखो 1 से 4 बनता है, ठीक है। तो सीधे सीधे अगर हम पूछे 4 से कितना बनेगा, तो क्या करेंगे, 4 से 4 का डिवाइड कर देंगे, 4/4 लिख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो ऐसे ही आपके सामने क्या है, 1200 है, 1200 पॉलन ग्रेन्स है। पूछ रहा है कितने पॉलन मदर सेल इसमें, यानी डिप्लॉयड पॉलन मदर सेल कितने की जरूरत पड़ेगी, तो 1200/4 कर देंगे तो सीधे आ जाएगा 300। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 300, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, ये 1200 की जगह जो है 1600 लिख दीजिए, और दूसरा क्वेश्चन लिख दिए 1200 की जगह 1000 लिख दीजिए, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन अपने हिसाब से बाकी चीज़ें वही लिख देंगे, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव क्लास में बताएंगे और कॉपी में भी लिख लेंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एट व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल डज डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, कह रहा है कि सेल साइकिल के किस स्टेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, तो होता है सिंथेसिस फेज। आपको बताया गया था सिंथेसिस फेज, जिसको और क्या बोलते हैं, एस फेज। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और उसको अच्छे से डिटेल से बताया है, वीडियो भी अवेलेबल है। चलो आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है इट इज सैड दैट वन साइकिल ऑफ सेल डिवीजन इन ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल्स टेक 24 आवर्स, कह रहा है ऐसा कहा जाता है कि एक साइकिल ह्यूमन बींग में जो यूकैरियोटिक सेल है 24 घंटे लगते हैं। विच फेज ऑफ साइकिल्स डू यू थिंक्स ऑक्यूपाई द मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल साइकिल, कह रहा है कि कौन सा सेल साइकिल का पार्ट है जिस सबसे ज़्यादा टाइम कवर करता है, तो वो है, ऊपर फिर से बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, वो है इंटरफेज, जो कितना टाइम लेता है, 95%। चलो आते हैं अब शॉर्ट आंसर टाइप पे आ जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप पे आ जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में क्या कह रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेट द रोल्स ऑफ सेंट्रियोल, कह रहा है स्टेट द रोल ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल का क्या पूछ रहा है, रोल पूछ रहा है। सेंट्रियोल के रोल क्या क्या है, सबको पता है।
पहला रोल है इट फॉर्म द स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल फॉर्म द स्पिंडल fiber during the cell division, and second it form the base for attachment of cilia and flagella, तो कभी कभी सेंट्रियोल का ड्यूअल रोल पूछ देता है बेटा, तो ऐसा नहीं हो कि कंफ्यूजन होनी चाहिए। सेंट्रियोल के पहले रोल है स्पिंडल फाइबर बनाता है, आप पढ़े होंगे सेंट्रियोल जो सेल में बनता है तो एक पोल पे एक सेंट्रियोल, दूसरे पोल पे दूसरा सेंट्रियोल, फिर वहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलता है जो क्रोमोसोम्स को अटैच करके पीछे खींच लेता है, और वो किस स्टेज में खींचता है, वो खींचता है मेटाफेज स्टेज में। ठीक है, तो अब ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये भरने वाला क्वेश्चन, इसको आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझिए और इसको आप अपने हिसाब से करिएगा। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द वेरियस फेज ऑफ सेल साइकिल, नेम द फेज अगेंस्ट ईच ऑफ द इवेंट्स। कह रहा है कि सेल साइकिल के डिफरेंट इवेंट्स है, इसको आपको भरना है। चलो, कह रहा है पहला इवेंट्स क्या दिया हुआ है, पहला इवेंट्स दिया हुआ है दिया है डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसइंटीग्रेट होता है, यानी कि कब जो है डिसअपियर्स होता है, तो वो होता है प्रोफेज स्टेज में। ठीक है, प्रोफेज स्टेज में, और वो लेट प्रोफेज यानी प्रोफेज के अंतिम स्टेज में ये डिसअपियर्स होता है। नेक्स्ट क्या है, एनाफेज, ये अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये किस में होता है, न्यूक्लियस अपीयर होता है एनाफेज स्टेज में। नोट कर लीजिए बाबू, एनाफेज स्टेज। ठीक है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, ये भी एनाफेज में होता है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज, यानी कि सेंट्रोमियर में पूरी तरह से एनाफेज में ही पूरी तरह से जो है सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये एस फेज में होता है। ठीक है, जब सेल साइकिल की बात आएगी तो उसमें एम फेज भी आ जाएगा और इंटरफेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइटोसिस रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग टू सेल्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर्स। कह रहा है कि माइटोसिस जो है दो सेल्स बनाता है जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। भाई ये तो स्टेटमेंट सही है। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलरिटीज अकर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। कह रहा है कि क्या होगा जब नीचे दिए गए ऑप्शन में से कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फेल टू डिसइंटीग्रेट, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेट ना हो, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिवाइड ना हो, तो क्या होगा, माइटोसिस न्यूक्लियस में ही हो जाएगा। माइटोसिस किस में हो जाएगा, न्यूक्लियस में ही हो जाएगा। तो लिखेंगे इट हैपन, सो पहले के लिए लिखेंगे माइटोसिस हैपन इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए डज नॉट अकर्स, अगर डीएनए का डुप्लीकेशन ना हो, ठीक है, डीएनए डबल ना हो, तो सीधी सीधी लिख देंगे नो माइटोसिस, माइटोसिस ही नहीं होगा। जाओ, डीएनए अगर ज़्यादा नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, तो माइटोसिस ही नहीं होगा, कोई सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रोमियर डज नॉट डिवाइड, अगर सेंट्रोमियर जो है डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, सेंट्रोमियर अगर डिवाइड नहीं करता तो क्रोमोसोम्स जो है सेपरेट आउट नहीं होंगे, क्रोमोसोम्स बढ़ जाएंगे, यानी कि एस फेज में जेनेटिक मटेरियल बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाएंगे तो एक कंडीशन आएगा जिसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज, पॉली मीन्स मैनी, प्लॉइडी मीन्स क्रोमोसोम्स। साइटोकाइनेसिस डज नॉट अकर्स, अगर साइटोकाइनेसिस हो ना, यानी कि अंदर जो है कैरियोकाइनेसिस हो जाए लेकिन ये सेल डिवाइड ना करे, ठीक है, तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, एक ही सेल में दो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसको कहते हैं सिनसाइटियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी आता है सिनसाइटियम, नोट कर लीजिए कॉपी में। सिनसाइटियम मीन्स व्हेन अ सिंगल सेल कंसिस्ट टू और मोर देन टू न्यूक्लियस, सिनसाइटियम। इट इज़ द फेज ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए, सबके सब पॉइंट्स खत्म हो गए, अब कुछ बताना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, नेम द पैथोलॉजिकल कंडीशन व्हेन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कह रहा है कि कोई ऐसा पैथोलॉजिकल कंडीशन बताइए जिसमें सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, सेल डिवीजन रुके ही ना, तो वो क्या है, कैंसर में होता है। ठीक है, सेल डिवीजन इसमें अनकंट्रोल हो जाता है और रुकता ही नहीं है, एक बार शुरू हुआ तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट है
हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल्स। पूछ रहा है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे डिफर्स है। तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, इरेगुलर मेथड्स के थ्रू होता है, इरेगुलर मेथड्स बताया गया था। और प्लांट सेल्स में सेल प्लेट मेथड के थ्रू होता है, जिसमें पहले सेल बीच में एक लाइनिंग बनती है, फिर थोड़ा सा सेल्स खींचता है अपनी साइड में ऐसे, उसके बाद धीरे धीरे सेल जो है डिवाइड कर जाता है। ठीक है, ये आप अच्छे से डायग्राम देख लेंगे, वीडियो पढ़ा होगा। तो इसमें सेल प्लेट मेथड से होता है प्लांट्स में, सेल प्लेट मेथड्स, और इसमें इरेगुलर मेथड से होता है जैसे अमीबा में होता है। आई होप अब आपके सारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से और 5 क्वेश्चन वेरी लॉन्ग, 5 क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू हो गया, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। आई होप आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम शुरू करेंगे क्या, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से शुरू करेंगे बायोमोलिक्यूल। ठीक है, यानी कि चैप्टर 9। थैंक यू।